శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. శుభప్రదం. कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे की रिहाइशगाह के बाहर इजाफी पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। हालिया दिनों में मिलने वाली धमकियों के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजीर प्रियंक खड़गे ने अपने हालिया बयान में कहा कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से की जा रही धमकियां खौफजदा करने की कोशिश है, जिसका वो आईन हिंद और अवाम की ताकत से मुकाबला करेंगे। उन्होंने एमएम कलबुर्गी और गोरी लंकेश जैसे माजी के वाक़यात का हवाला देते हुए उन हथकंडों की सख्त मजम्मत की और कहा कि ऐसे हालात में कानून का सहारा लिया जाना ज़रूरी है। उन्होंने रियासती काबीना के हालिया फैसले का जिक्र किया, जिसके तहत अवामी मुकामात पर किसी भी तकरीब, जश्न या जुलूस के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी गई है और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। This is the standard operating by RSS and BJP. This happened to MM Kalburgi ji, this happened to Gauri Lankesh ji, and moreover this thought has killed Mahatma Gandhi, has defeated Baba Saheb Ambedkar in polls, and it is this thought that is the most poisonous for the society. So when they haven't spared Mahatma Gandhi, they have not spared Baba Saheb Ambedkar, who am I? I'm nothing in front of those giants. So this is the standard operating procedure of intimidation, threat and everything. We are not going to get bogged down. I'm not going to be scared by these forces. I have the people of Kalburgi with me, people of Karnataka with me, and more importantly, I have the Constitution of India backing me. See, BJP leaders should first answer my questions. Instead of targeting me personally, instead of making personal jibes, I have asked 4 or 5 relevant questions. Have they been able to answer it? And why are they speaking on behalf of RSS? Why RSS can't defend themselves? The world's largest NGO, whom the Prime Minister speaks about from the Red Fort, the biggest voluntary organization in the world, the most powerful man, Mr. Mohan Bhagwat, who gets great security, the security equivalent to that of Minister of External Affairs and Home Minister of India. They can't speak for themselves. Why is BJP speaking for them? What is RSS so afraid of? All I'm asking is show me one document that shows that there are. कर्नाटक के रियासती वजीर प्रियंक खड़गे को दी गई जान से मारने की धमकी के खिलाफ आज मांड्या में कांग्रेस और तरक्की पसंद तंजीमों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेस और तरक्की पसंद तंजीमों के कारकुनों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि रियासती वजीर प्रियंक खड़गे ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की वकालत की थी, जिसके बाद इन्हें बीजेपी और आरएसएस से वाबस्ता अफराद की जानिब से धमकियां और तौहीन आमेज तबसरे मौसूल हुए। मुजाहिरीन ने आरएसएस और बीजेपी को आइन मुखालिफ, जमहूरियत दुश्मन और दलित मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಶೋಷಿತರ, ದಲಿತರ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆರವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಕ್ಷಣ ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೀಳು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಆಶಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
मदुरई में AIADMK की यौम तासीस को बड़े पैमाने पर मनाया गया। साबिक वजीर सिल्वर राजू ने मदुरई में पार्टी के बानी व साबिक वजीर आला MGR और जयललिता के मुजस्सिमों पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश देखा दिया। इस तकरीब में सैकड़ों पार्टी कारकुन मौजूद थे। सिल्वर राजू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि AIADMK की बुनियाद तमिल अवाम की फलाह व बहबूद और समाजी इंसाफ के उसूलों पर रखी गई थी और पार्टी उन उसूलों पर हमेशा कायम रहेगी। அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கெங்கு கழக பிரிவு மாவட்டங்கள் இருக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் இன்றைக்கு புரட்சித் தலைவர் புனித தலைவர் மக்களின் மனங்கவர்ந்த தலைவர் புரட்சித் தலைவர் உருவாக்கிய இந்த மாபெரும் இயக்கத்தின் 54வது ஆண்டை கொண்டாடுகின்ற வகையிலும் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவுடைய புகழை கொண்டாடுகின்ற வகையிலும் இந்த இயக்கத்தை मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कपास किसान ऐप का इफ्तिताह किया। कपास की तरक्की के लिए तैयार करदा कपास किसान ऐप का ऐलान किया, जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस ऐप के जरिए किसान अपनी पैदावार की तफसीलात दर्ज कर सकेंगे और खरीदारी मराकिज से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगी। ये स्कीम दिवाली से नाफिजुल अमल होगी। किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों में कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत दुगनी की गई है और सिर्फ तेलंगाना में CCI के जरिए 23 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की कपास खरीदी जा चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 122 मराकिज पर कपास की खरीदारी की जाएगी। 122 सेंटर्स में हम कॉटन परचेस करेंगे। अगर मोर देन 340 जिन्निंग मिल्स इसमें प्रोसेस करेंगे। हमारे हर 122 सेंटर्स में सभी जगह कमिटीज डाले हैं जिला कलेक्टर के नेतृत्व में। किसानों से रोज़ मिलेंगे, किसानों का कोई प्रॉब्लम ना हो, मीडिएटर्स ना हो, पूरे पैसे उनके अकाउंट में डालेंगे। आधार कार्ड लिंकित करते हुए सीधा भारत सरकार किसानों के अकाउंट में इसका MSP के पैसे उनके अकाउंट में किसानों के अकाउंट में डालेंगे। 3 दिन के अंदर अगर CCI को कपास देने के बाद 3 दिन के अंदर पैसे मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर भारत सरकार CCI के द्वारा जो कॉटन प्रोड्यूसर्स फार्मर्स है उनका अकाउंट में पैसे देंगे। दीपावली के दिन एक कपास किसान ऐप का एक नया ऐप क्रिएट किए गए। किसान अपने पास जितने भी कपास प्रोडक्शन होता है उसका ऐप के द्वारा वो बता सकते हैं और ऐप में कौन सा सेंटर में जो कॉटन परचेस होगा उसके भी डिटेल किसान को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश के वजीर NMD फारूक ने आज नंदियाल के सरकारी जनरल अस्पताल के अहाते में एक नए क्रिटिकल केयर यूनिट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर NMD फारूक ने कहा कि ये क्रिटिकल केयर यूनिट हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कायम किया जा रहा है ताकि ज़िला के लोगों को हंगामी और नाजुक हालात में बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सेहत आमा को अव्वलीन तरजीह दे रही है। ज़िला हेडक्वार्टर नंदियाल में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये नया क्रिटिकल केयर यूनिट दस्तियाब कर दिया जाए तो मरीजों को बेहतर सहूलियात और खुसूसी इलाज फराहम करना मुमकिन होगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस यूनिट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और इसे आवाम के लिए दस्तियाब कराएं। इस मौके पर तेलुगुदेशम के ज़िले जनरल सेक्रेटरी NMD फेरोज, डॉक्टर सोहेल, काउंसलर्स और दिगर मौजूद थे। खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है, जहां पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से वॉकथॉन और सफाई सेवा मुहिम मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम की क़यादत कमिश्नर SP कृष्णा राव ने की। इस मुहिम का मकसद शहरियों में सफाई, माहौल से मोहब्बत और कागज़ के कम इस्तेमाल के ज़रिए वसाइल की बचत के हवाले से शऊर उजागर करना था।
कमिश्नर ने कहा कि इस इक़दाम के जरिए न सिर्फ दफ्तरी कामों को पेपरलेस बनाया जा रहा है बल्कि अवाम शिकायत का भी बर वक्त अजाला किया जा रहा है। ये मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत को साफ, सरसब्ज व शादाब और खुशहाल मुल्क बनाने की मुहिम का एक हिस्सा है। ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ప్రారంభించిన ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఎంతో అభినందించదగిన విషయం. ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించి పర్యావరణం పట్ల ఈ స్వచ్ఛ భారత్ పట్ల ప్రజలకు ఒక అవగాహన కలిగించడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయి. ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు శ్రీనివాస్ గారు కమిషనర్ గారు కూడా ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, దీని ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించడం, తద్వారా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను. నన్ను ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఆహ్వానించిన శ్రీనివాస్ గారికి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए तमाम सरकारी इमदादी स्कूलों में 2 रोज़ा स्वच्छता उत्सव सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। मुकामी गर्ल्स स्कूल और लॉर्ड्स हाई स्कूल के सैकड़ों तलबा ने सफाई क्विज मुकाबले और शिराकतदारी के जरिए भरपूर हिस्सा लिया। सीबीसी के असिस्टेंट डायरेक्टर आर रमेश चंद्रा ने तलबा पर जोर दिया कि वो सफाई के सफ़ीर बने और माशरे के लिए मिसाल कायम करें। तलबा ने स्वच्छ भारत के अज़म के तहत हफ्ते में कम से कम 2 घंटे सफाई में हिस्सा लेने का हल्फ भी लिया।